بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاجوج ماجوج آخر کون ہیں یا کیا ہیں؟ کیا یہ کوئی جانور ہیں یا کوئی ایسی مخلوق جسے نہ کبھی کسی نے دیکھا اور نہ جانا، یا پھر یہ ہم جیسے ہی انسان ہیں؟ آخر یہ مخلوق کیا ہے اور اس وقت کہاں موجود ہے؟ اگرچہ یہ موضوع بہت وضاحت طلب ہے، مگر ہم ان کا مختصر جائزہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں لیں گے۔ اسلام میں یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن اور حدیث دونوں میں ملتا ہے، اور اسے قرب قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک بتایا جاتا ہے، جس میں دجال اور حضرت عیسیٰ کی واپسی کا بھی ذکر ہے۔ اس فتنے کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے۔ آخر یاجوج ماجوج کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ ان کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ عرب ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے مشورہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کیا سوال پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس یہودی عالم نے عربوں کو 3 سوال پوچھنے کا کہا۔ سوال نمبر 1، وہ کون سا شخص ہے جو دنیا کے 3 کونوں تک گیا؟ سوال نمبر 2، اصحاب کہف کون ہیں؟ سوال نمبر 3، روح کیا ہے؟ ان تینوں سوالوں میں ہمارا موضوع بحث اور غور طلب سوال نمبر 1 ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس سوال کا جواب اپنے محبوب کو یوں عطا فرمایا، یہ آپ سے دریافت کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالقرنین کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے میں تمہیں اس کی کچھ خبر دیتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ذوالقرنین نام کی شخصیت کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ وہی شخصیت ہیں جن کا سوال اس یہودی عالم نے کیا تھا کہ وہ کون سا مسافر ہے جو دنیا کے 3 کونوں تک گیا۔ ذوالقرنین کے بارے میں سب سے پہلے تفصیلی تحقیق کرنے والے مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔ ان کے مطابق ذوالقرنین 580 قبل مسیح میں پیدا ہونے والے ایک ایرانی بادشاہ تھے، جنہیں یونانی سائرس دی گریٹ اور ایرانی کورش کبیر کے نام سے جانتے تھے۔ ذوالقرنین کے لفظی معنی ہے 2 سینگ والا۔ یہ 2 سینگ در حقیقت ذوالقرنین کی زیر اطاعت 2 سلطنتوں میدیا اور پارسا کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب ذوالقرنین کا مقبرہ کھودا گیا تو اس میں 3 سینگوں والا ایک مجسمہ بھی دریافت ہوا۔ ان 3 سینگوں پر نمایاں طور پر کندہ کیے گئے دنیا کے 3 حصے نمایاں ہیں جہاں ذوالقرنین گئے اور ان کو فتح کیا۔ پہلا حصہ افغانستان، ایران اور بلوچستان، جبکہ دوسرا حصہ آرمینیا، آسیریا اور ترکی کا علاقہ، جبکہ تیسرا حصہ عراق کا علاقہ ہے۔ مگر دوستو، یہاں سوال یہ ہے کہ یہودی ذوالقرنین کو کیسے جانتے تھے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں 586 قبل مسیح کی بابل کی تاریخ میں جانا پڑے گا۔ بابل اس وقت کی مضبوط ترین ریاست سمجھی جاتی تھی۔ جب بابل کے بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور فرسٹ ٹیمپل کو تباہ کر دیا اور وہاں موجود تمام یہودی آبادی کو غلام بنا کر وہ بابل لے آیا۔ 539 قبل مسیح میں ذوالقرنین نے آسانی سے بابل کو شکست دے کر اسے فتح کر لیا۔ ذوالقرنین نے یہاں کوئی خون خرابہ نہیں کیا اور بہت ہی کم مزاحمت کے ساتھ بابل کو فتح کیا، کیونکہ وہ ایک نرم دل اور عادل حکمران تھے، اور جہاں جاتے تھے لوگ ان کے اخلاق اور شخصیت سے متاثر ہو کر ان کی فوج میں شامل ہو جاتے۔ بابل پر قبضے کے بعد ذوالقرنین نے اپنا مشہور زمانہ فرمان جاری کیا، جو کہ آنے والی نسلوں کے لیے پہلا قانونی آئین بنا، جس کی نقول آج بھی یونائیٹڈ نیشن اسمبلی کی بلڈنگ، برٹش میوزیم اور ایرانی پارلیمنٹ میں موجود ہیں۔ حتیٰ کہ امریکہ اور یورپ میں سیاستدان باقاعدہ طور پر ریاست کے معاملات کو چلانے کے لیے پہلے ان قوانین کو ضرور پڑھتے ہیں۔ دوستو، ذوالقرنین وہ واحد غیر یہودی شخصیت تھے جنہیں یہودی اپنا مسیح قرار دیتے تھے۔ ان کی سلطنت موجودہ دور کے پاکستان، افغانستان اور ایران سے لے کر یونان کے ساحلوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ رب کریم نے قرآن پاک کے اندر ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کی ملاقات کو کچھ اس انداز میں پیش کیا ہے، وہ ایک راہ کے پیچھے لگا۔ علماء کرام کے مطابق اس آیت کے مطابق ذوالقرنین ایک سفر پر نکلتے ہیں جہاں وہ ایسے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں صرف ایک سمت میں آگے بڑھنا ممکن ہے۔ اس سے مزید آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ تک پہنچ گیا اور اسے ایک کیچڑ نما چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا اور اس کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ اللہ نے فرمایا، اے ذوالقرنین، یا تم ان کو سزا دو یا ان کے لیے کوئی بہتر روش اختیار کرو۔ اس آیت مبارکہ میں جگہ جگہ علامتی اشارے موجود ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے تاریخ کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ اس آیت مبارکہ میں واضح ہے کہ ذوالقرنین مغرب کی جانب روانہ ہوئے، اور اس وقت ذوالقرنین کی سلطنت کے مغرب میں آرمینیا کا علاقہ تھا۔ اس وقت کے موجودہ آرمینیا میں 3 بڑی جھیلیں اورمانیا، وان اور سیوان موجود تھی، مگر آج کے موجودہ آرمینیا میں صرف جھیل ساوان موجود ہے، اور اسی کی طرف ذوالقرنین بڑھے۔ یہ جھیل آرمینیا کے کل رقبے کا 5% ہے۔ قرآن پاک میں اس جھیل کی خصوصیت اس کی کالی رنگت یا کیچڑ نما ہونا ہے۔ آیت مبارکہ میں مزید بتایا گیا ہے کہ ذوالقرنین نے اس جگہ ایک قوم کو آباد پایا اور اللہ نے ان کو اختیار دیا کہ وہ ان سے جو چاہے سلوک کریں۔ اس کے علاوہ اس سفر کے دوسرے حصے کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ وہ سورج کے نکلنے کی جگہ تک جا پہنچا
और इसे एक ऐसी कौम पर निकलता पाया कि इनके लिए हमने इससे कोई और ओट ना बनाई थी। दोस्तों, इस आयत मुबारक में जिस इलाके यानी सूरज के निकलने की जगह का जिक्र मौजूद है वो मौजूदा आज़रबाईजान का इलाका है, जहाँ ओट से मुराद दरख्त और नबातात हैं, क्योंकि आज़रबाईजान का बेशतर इलाका बारिशें न होने के सबब सराई है। आज़रबाईजान के शुमाल में मौजूदा दौर के दागिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है। इसी जगह एक शहर भी मौजूद है जिसका नाम दरबंद है, और ये वही जगह है जहाँ जुल्करनैन पहुंचे थे। दरबंद फारसी जबान का लफ्ज है और इससे मुराद दर यानी दरवाजा और बंद यानी दरवाजा या राह को बंद करना है। इस इलाके के मगरिब में कोकाफ का पहाड़ी सिलसिला मौजूद है और मशरिक में बहरा खिजर वाक़या है। ये वही जगह है जहाँ जुल्करनैन ने याजूज माजूज को रोका और वो बंद बनाया। इससे मजीद आगे के सफर की दास्तान कुरान पाक में कुछ यूं बयान होती है, यहाँ तक कि वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा और इसके पास इसने एक ऐसी कौम को पाया जो बात समझने के करीब न थी। बस आयत मुबारक में जिस कौम का जिक्र किया गया है ये वही कौम है जो जुल्करनैन को दरबंद के इलाके में मिली, और ये लोग जुल्करनैन की बात समझने के काबिल न थे। और मजीद अहम निशानी कि ये कौम दो पहाड़ों के दरमियान आबाद थी, क्योंकि ये जगह जमीन की सतह से कुछ ऊंचाई पर वाक़या थी और एक पहाड़ी टीला था। आज के दौर में भी वो किला मौजूद है जो जुल्करनैन ने इस कौम को यानी याजूज माजूज को रोकने के लिए बनाया था। इससे मजीद आगे रब करीम ने वजाहत फरमाई कि उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, याजूज माजूज इस मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतजाम कर दें कि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें। इस आयत मुबारक में उन्हों लफ्ज से मुराद वहीं आबाद एक कौम है जो कि जुल्करनैन से अपना मसला बयान कर रही है कि यहाँ मौजूद एक और मजीद कौम यानी याजूज माजूज बहुत फसादी हैं, और अगर आप कहें तो हम आपके लिए मालो ज़र का इंतजाम कर दें ताकि आप इनके यानी याजूज माजूज के और हमारे दरमियान एक दीवार बनवा दें। दोस्तों, अक्सर लोगों को ये गुमान है कि याजूज माजूज कोई ऐसी मखलूक है जो गैर इंसानी और देव कामत है। ये गुमान सिर्फ कुरान और हदीस का मुताला ना करने का नतीजा है। लिहाजा यही वजह है कि लोग कुर्बे क़यामत की इतनी बड़ी निशानी से बेखबर हैं, जिसका तज़किरा पूरी वजाहत के साथ कुरान और हदीस में मौजूद है, और ये भी कि वो इंसान ही है, हत्ता कि इनकी नस्ल के बारे में भी वजाहत मौजूद है। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़िका हदीस जिसके रावी अबू सईद खुदरी रहमतुल्लाह अलैह हैं और जिसका मफहूम ये है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि अपनी औलाद में से जन्नती और जहन्नमी अलग अलग कर दो, तो हर 1000 में से एक जन्नती और 999 जहन्नमी होंगे जो कि याजूज माजूज में से होंगे, यानी ये कौम याजूज माजूज बनी आदम में से ही है। मगर यहाँ एक सवाल दिमाग में आता है कि आखिर बनी आदम की इतनी कसीर तादाद याजूज माजूज की सफ़ों में कैसे शामिल होगी। इससे पहले हमें याजूज माजूज कौम की जमीन पर मौजूदगी को समझना होगा कि आखिर वो कहाँ से आए। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आज की मौजूदा आबादी सब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों हाम, शाम और याफिस की नस्ल से हैं, क्योंकि तूफान नूह में सिर्फ हजरत नूह के 3 बेटे ही जिंदा बचे थे और उन्हीं से आगे नस्ल बढ़ी थी। हाम से अफ्रीकी ममालिक के लोग, शाम से अरब और यहूद और याफिस से तुर्क या यूरोपी या सफेद फार्म कौमें आगे बढ़ी, और याजूज माजूज की कौम हजरत नूह के बेटे याफिस की नस्ल से हैं और ये सफेद फार्म कौम है। यूनान में याजूज माजूज की कौम को अश्कनाज के नाम से भी जानते थे। अश्कनाज माजूज का भांजा था। 780 कबले मसीह में ये लोग कोकाफ की पहाड़ियों से आते और जनूब पर हमला आवर हो जाते। ये कौम कोकाफ और बहरा खिजर के शुमाल में बड़ी तादाद में आबाद थी और वहाँ ये लोग काबिज थे और हर राह गुजर और ताजिर से ये लोग टैक्स भी वसूल करते थे। ये कौम खुद को खजर या कौम खिजर भी कहती थी, इसीलिए कैस्पियन सी को बहरा खिजर भी कहा जाता है, जो कि इसी कौम के नाम पर है। इनके कब्जे में जो इलाके थे वो मौजूदा मगरबी रूस से लेकर मौजूदा दौर के जर्मनी तक हैं। याजूज माजूज की ये कौम बिना किसी वजह के आसपास की कमजोर कौमों पर हमला आवर होकर वहाँ खूब लूटमार और कत्लो गारत करती थी और बाकी बचे जिंदा लोगों को गुलाम बना लेती थी, जिनको बाद में या तो काम के लिए रख लिया जाता या गुलाम बनाकर बेच दिया जाता। उसके अलावा जो राह गुजर इन इलाकों से गुजरते इन पर भारी टैक्स लगाया जाता था और ऐसा ना करने पर उनको मार दिया जाता था। लिहाजा दरबंद के लोगों ने इन्हीं वजूहात की बिना पर जुल्करनैन से मदद मांगी, जैसा कि आयत मुबारक में बताया गया है। दोस्तों, दरबंद के लोग अपनी तामीरात लकड़ी के जरिए किया करते थे, जबकि जुल्करनैन के दौर में फन तामीरात अरूज पर था और पत्थरों और लोहे के जरिए भी तामीरात की जाती थी। लिहाजा वहाँ के लोगों ने जुल्करनैन से दरखास्त की कि आप हमारे और याजूज माजूज के दरमियान दीवार बना दें, जबकि वो माली और फौजी इमदाद भी देने को तैयार थे। मगर अगली आयत मुबारक में अल्लाह पाक ने कुछ यूं फरमाया, मेरे इख्तियार में मेरे परवरदिगार ने जो दे रखा है बस वही बेहतर है। तुम सिर्फ कुव्वत ताकत से मेरी मदद करो और मैं तुम और इनके दरमियान एक बंद बना देता हूँ। इस आयत मुबारक से पता चलता है कि जुल्करनैन ने इन लोगों की इल्तिजा को कबूल किया, जबकि मालो मता की पेशकश को रद्द कर दिया और फरमाया कि तुम लोग सिर्फ ताकत यानी फौज के जरिए से मेरी मदद करो और मैं याजूज माजूज और तुम्हारे दरमियान एक बंद बना देता हूँ।
यहाँ ये बात गौर तलब है कि इस कौम ने दीवार बनाने की इल्तिजा की, मगर जुल्करनैन ने बंद बनाने की पेशकश की, जिसकी खुसूसियात पानी को रोकना है। मगर इस बंद को याजूज मजूज के हमलों से रोकने के लिए बनाया गया, जो इस वक्त इस इलाके में हमला आवर होते थे। दोस्तों, इस बंद के कई दरवाजे मौजूद थे और हमले के वक्त इन दरवाजों को बंद कर दिया जाता था। आज के दौर में भी इस किले की जनूबी दीवारें बहुत हद तक मस्मार हो चुकी हैं, मगर शुमाली दीवार का 80% हिस्सा अभी भी मौजूद है। दीवार चीन के बाद ये दीवार पूरी दुनिया की दूसरी बड़ी दिफाई दीवार है। इस किले से आगे के इलाके यानी कोकाफ का इलाका जुल्करनैन की हुकूमत में था, लिहाजा इस बंद बनने के नतीजे में उन इलाकों की भी हिफाजत हो गई। दोस्तों, इससे मजीद अगली आयत में रब करीम ने इरशाद फरमाया, मुझे लोहे की चादरें ला कर दो, यहाँ तक कि इसने 2 पहाड़ों के दरमियान बंद खड़ा कर दिया और कहा कि अब दहकाओ, हत्ता कि इसे आग बना दिया। तो कहा मुझे ला कर दो, मैं इस पर पिघला हुआ तांबा उंडेलूंगा। दोस्तों, इस आयत मुबारक में लोहे की चादरों और तांबे का जिक्र मौजूद है, जो कि इस बंद की तामीर के दौरान इस्तेमाल हुआ था। जबकि अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो बंद जुल्करनैन ने बनाया था वो सिर्फ और सिर्फ लोहे और तांबे का है, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बंद के बनाते वक्त मेन दरवाजों पर वाफिर मिकदार में लोहे और तांबे का इस्तेमाल किया गया। अब इस बंद का बेशतर हिस्सा खंडरात बन चुका है, मगर फिर भी बाकी हिस्सा अल्लाह पाक के हुक्म से कायम और दायम है। इससे अगली आयत मुबारक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, बस तो इनमें इस दीवार के ऊपर चढ़ने की ताकत न थी और ना इनमें सुराख कर सकते थे। दोस्तों, जो बंद जुल्करनैन ने बनाया, दरबंद के लोग इस बंद की छत पर चढ़कर इसकी हिफाजत करते थे। लिहाजा जब याजूज माजूज इन दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करते तो इनको पिसवा कर दिया जाता था, क्योंकि याजूज माजूज पत्थर और लोहे की तामीरात के आदी ना थे और ना ही इसका कोई तोड़ जानते थे। इससे अगली आयत मुबारक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ये सिर्फ मेरे रब की मेहरबानी है। हाँ, जब मेरे रब का वादा आएगा तो इसे जमीन बोस कर देगा। बेशक मेरे रब का वादा सच्चा और हक है। दोस्तों, इस किले के लोहे के बने मरकजी दरवाजों का नामो निशान मौजूद नहीं और जनूबी दीवार भी जमीन बोस हो चुकी है। मतलब इस आयत मुबारक में ये वाज़ेह हुआ कि कुरान करीम की ये पेशनगोई अब सच साबित हो चुकी है और ये किला अब जमीन बोस होता जा रहा है। जबकि अक्सर लोग ये गुमान करते हैं कि जो बंद जुल्करनैन ने तामीर किया था वो आज भी कायम है। जबकि बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफिका हदीस मुबारक में बयान है, हजरत ज़ैनब बिन्त हबश रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके यहाँ ऐसी हालत में तशरीफ लाए कि जैसे बहुत घबराए हुए हों और फिर फरमाने लगे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अफसोस सद अफसोस अरब के इस शर फितने पर जो अपनी हलाकत आफरीनी के साथ करीब आ पहुंचा है। आज याजूज माजूज की दीवार में इस कदर सुराख हो गया है। यह कहकर आपने अंगूठे और बराबर वाली उंगली के जरिए हल्का बनाया। इस हदीस मुबारक से साफ तौर पर वाज़ेह होता है कि याजूज माजूज की कौम का खरूज हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में होना शुरू हो गया था। मतलब इस बंद की दीवारों में सुराख हो गया था और याजूज माजूज ने इस किले के बंद में सुराख करने का तरीका सीख लिया था। इस्लामी और मगरबी तारीखी हवाले से पता चलता है कि मुसलमानों की फौजें हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में इस इलाके की तरफ बढ़ी और याजूज माजूज की कौम या कौम खिजर के साथ जंग की, जो कि 100 साल पर मुहित अरसा है, जिसकी एक निशानी दरबंद और दागिस्तान के इलाके में साहबा कराम की कब्रें हैं, जो इसी याजूज माजूज की फौज के साथ लड़ते हुए शहीद हुए। मगर मुसलमानों की अंदरूनी खलफशार की वजह से 100 साल ये जंगी मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई। हदीस मुबारक के मजीद हिस्से में अरब का भी जिक्र है कि इन पर इस फितने का पहला या ज्यादा असर होगा, क्योंकि मुसलमानों में अरब ही वो थे जिन्होंने हजरत उमर के दौर में इन याजूज माजूज से जंग की थी। दोस्तों, इस याजूज माजूज की कौम को तारीख में कई नाम से जाना जाता रहा है, मसलन याजूज माजूज, गोग एंड मैगोग, स्कैथियंस, एशकेनाजी, खजर और कौम खिजर। मुस्लिम उम्मा इसे तारीखी हवाले में खजर या कौम खिजर या एशकेनाज के तौर पर जानती है। अब्दुर्रहमान के एक यहूदी वजीर हजदई और कौम खिजर के बादशाह जोसेफ के दरमियान खतो किताबत का भी तारीख में रिकॉर्ड मिलता है। हजदई एक यहूदी था और अब्दुर्रहमान स्वयं का वजीर था। वो ये जानने का बहुत शौक रखता था कि बनी इसराइल के 10 कबीलों में से किसी कबीले ने किसी इलाके में अपनी हुकूमत कायम की है या नहीं। ये सवाल अक्सर वो अपने सफीरों से करता रहता था। मगर इसे 944 सन ईस्वी में एक सफीर ने बताया कि एक यहूदी रियासत किस्तनतुनिया से 15 दिन के आबी सफर की दूरी पर मौजूद है, जिसे अल खिजर के नाम से जाना जाता है, और ये कौम कुस्तनतुनिया के साथ तिजारत भी करते हैं और ये बहुत ताकतवर कौम है और ये आसपास की कौमों पर हमला भी करते रहते हैं। लिहाजा हजदई ने कौम खिजर के बादशाह जोसेफ को खत लिखा और उससे दरियाफ्त किया कि इस बात में कितनी सच्चाई है और ये कि वो बनी इसराइल के किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं। इस खत के जवाब में अल खिजर कौम के बादशाह जोसेफ ने जो कुछ लिखा वो हैरान कुन था।
क्योंकि जोसेफ ने बताया कि वो बनी इसराइल के किसी भी कबीले से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि इसकी नस्ल याफिस और इनके बेटे तगोरमा से आगे बढ़ी, जो कि तुर्कों के बाप भी कहलाते हैं। इसने मजीद बताया कि इसके आबो अजदाद में बोलान नामी एक बादशाह था, जो कि कुफर के निजाम से तंग आकर अपनी पूरी कौम समेत यहूदी हो गया। बोलान बादशाह ने यहूदी उलमा को अपनी रियाया में बुलाया और यहूदियत को मजीद फैलाया और इनके लिए इबादतगाहें भी तामीर की। आज के दौर में भी कुछ लोगों का ख्याल है कि यहूदियत इख्तियार नहीं की जा सकती और सिर्फ यहूदी का बेटा या बेटी ही यहूदी हो सकते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी वाज़ेह तरीन मिसाल मशहूर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवानका है, जिसने एक यहूदी शख्स से शादी की और वो ईसाई से यहूदी हो गई। इसी तरह इस दौर में भी यहूदियत इख्तियार करना कोई अजीब बात नहीं थी। दोस्तों, बनी इसराइल अरब नस्ल से हैं और इनकी रंगत गंदमी माइल होती है, जबकि आज के मौजूदा दौर के यहूदी वो सफेद फाम है और उसी बादशाह बोलान की नस्ल से हैं, जो पहले काफिर था और बाद में इसने अपनी पूरी कौम के साथ यहूदियत इख्तियार कर ली थी। जबकि आज के ये सफेद फाम यहूदी खुद को बनी इसराइल से जाहिर करते हैं और इसी बिना पर यहूदी रियासत इसराइल का क़याम भी किया गया है। सूरह अंबिया में रब करीम इरशाद फरमाते हैं, और जिस बस्ती को हमने हलाक किया इस पर लाजिम है कि वहां के लोग पलट कर नहीं आएंगे, और यहाँ तक कि याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। कुरान करीम की इन मुकद्दस आयात के अंदर जिस बस्ती के हलाक होने का जिक्र मिलता है वो यरूशलेम है, जिस पर 2 बार कब्जा हुआ और यहूदी इस कब्जे के दौरान दर बदर हो गए। जबकि इसी आयत मुबारक के मुताबिक पलट कर आने से मुराद वो यहूदी दोबारा अपनी हुकूमत कायम नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, हम देखते हैं कि आज ऐसा ही हुआ है। जिन यहूदियों ने इसराइली रियासत का क़याम बनी इसराइल के यहूदी खुद को जाहिर करके किया, वो दरअसल इसी बोलान और जोसेफ बादशाह की नस्ल से हैं। मजीद अगली आयत मुबारक में याजूज माजूज के खोल देने और हर बुलंदी से उतरने से मुराद ये लोग दुनिया की हर ऊंचाई पर मौजूद होंगे। यहाँ ये बात समझना जरूरी है कि मैदान जंग में ऊंचाई की जगह पर कब्जा होना फतह याब होने और कब्जा की अलामत समझा जाता है। लिहाजा इस आयत मुबारक से मुराद ये है कि याजूज माजूज हर बुलंदी पर मौजूद होंगे, और वो हम आज के दौर में देखते भी हैं और आज ऐसा ही हो रहा है। ये यहूदी लोग दुनिया के तमाम वसाइल पर काबिज हैं। दुनिया के तमाम बैंक्स, माली वसाइल, मीडिया हाउसेस, फूड चेन्स, रेस्टोरेंट्स, गर्ज, हर ऊंचाई पर ये लोग मौजूद हैं और लोगों के ईमान पर हमला आवर हो रहे हैं। लोगों को ज़हनी, नफ्सियाती, सियासी, मजहबी और हर तरह से हमला करके तबाह कर रहे हैं और हर बुलंदी पर होते हुए लोगों पर हमला आवर हो रहे हैं। और यही लोग अपने मसीह दज्जाल के मुंतजिर हैं और इसकी फौज के हिस्सेदार होंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि कुरान और हदीस के हवालों की रोशनी में याजूज माजूज की हकीकत आप बखूबी जान गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स में भी कर सकते हैं। मेरा नाम है असीफ शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।